So hello students, today we are starting ecosystem chapter. Ecosystem and environmental issues, two chapters are remained. Ecosystem. Ecosystem here, the term coined by A.G. Tansley. Term ecosystem given by A.G. Tansley. And what is ecosystem? Ecosystem is segment of nature, functional unit of nature. Ecosystem is functional unit of nature. You can define ecosystem in many ways. You can call ecosystem as segment of nature, functional unit of nature, or you can say ecosystem is study of interaction. Study of interaction between biotic components. Biotic components with each other and also with abiotic components. So biotic components are interacting with each other. Plants, microbe, animal, they are interacting with each other and also interacting with abiotic environment like temperature, water, soil. So ecosystem is interrelationship. It is the relationship between different components of the nature. How plants are interacting, animals are interacting, and microbes are interacting with each other as well as with their surrounding abiotic components, non-living components. Ecosystem can be as small as a small aquarium. एक छोटा सा aquarium भी ecosystem हो सकता है. एक ocean भी ecosystem हो सकता है. Forest भी ecosystem हो सकता है. Desert भी ecosystem हो सकता है. इसलिए बोला मैं segment of nature. Segment of nature बोला. Many ecologists believe this whole biosphere of the earth, whole biosphere, अर्थ का जितना भी biosphere है, this is one ecosystem. Many ecologists believe, many ecologists says this whole biosphere is one global ecosystem. One global ecosystem. सबसे बड़ा एक ecosystem, global ecosystem. एक ecosystem. Now this ecosystem divided, splitted into smaller and smaller components. तो क्या क्या देखिए हम यहाँ पर. सबसे पहले ecosystem term given by A.G. Tansley. And ecosystem you can call it as segment of nature. Segment of nature. If you visit some garden, that is also ecosystem. Garden is also one type of ecosystem. Crop field is also an ecosystem. जहां जहां पर organism है वो सब ecosystem है. Ecosystem is called functional unit of nature. वर्क होता है ecosystem में, एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी इनपुट होता है इकोसिस्टम में, एनर्जी आउटपुट भी होता है इकोसिस्टम से. Ecosystem is the interaction between biotic component with each other and also with abiotic non-living components.
And many ecologists says this whole biosphere, the whole planet Earth, as one large ecosystem called global ecosystem. एक large ecosystem है complete Earth, जिसको बोल रहे हैं हम global ecosystem. Now let's see types of ecosystem. Types of ecosystem क्या क्या है? तो ecosystem में दो टाइप मिलेंगे आपको, नेचुरल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम, मैन मेड इकोसिस्टम. नेचुरल इकोसिस्टम में फिर आपको दो टाइप मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक. टेरेस्ट्रियल में आपको मिल रहा है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आ रहा है. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स. एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपको मिल रहा है पॉन्ड, लेक. ये यहां पर जो है कुछ नेचुरल लिखेंगे, नेचुरल में लिखेंगे. यहां पर जो है सबसे पहले देखिए, पॉन्ड नेचुरल हो सकता है, पॉन्ड कैन बी नेचुरल. रिवर, ओशन, एशुरी. एशुरी, ठीक है. एशुरी का मतलब है जहां पर फ्रेश वाटर, मरीन वाटर क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है. फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर का ट्रांजिशन जोन है. फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर ट्रांजिशन जोन, जहां पे मिक्स हो रहा है, वो पॉइंट को बोल रहे हैं हम एशुरी. And even estuary you can call it as ecotone. इकोटोन का एग्जाम्पल भी बोल सकते हैं. इकोटोन क्या होता है? इकोटोन ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम. दो इकोसिस्टम का ओवरलैपिंग जोन जो होगा, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम. ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम. दो अलग अलग इकोसिस्टम का ओवरलैपिंग जोन जो होगा, जैसे ये रिवर है, ये ओशन है, तो रिवर और ओशन का जो ओवरलैपिंग जोन है दैट इज कॉल्ड एशुरी. और ये एशुरी क्या है? ट्रांजिशन जोन है बिटवीन टू इकोसिस्टम्स. बिटवीन टू इकोसिस्टम का ट्रांजिशन जोन है. नो मैन मेड इकोसिस्टम में देखिए एक्वेरियम है. एक्वेरियम इज मैन मेड इकोसिस्टम. क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड इज मैन मेड इकोसिस्टम. व्हाई दे आर कॉल्ड मैन मेड? मैन मेड मतलब इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ह्यूमन डिसाइड. इन मैन मेड इकोसिस्टम ह्यूमन डिसाइड विच स्पीशीज इज टू बी ग्रोन. इन एक्वेरियम, एक्वेरियम में कौन सी फिश रखना है आपको, हु इज डिसाइडिंग? ह्यूमन इज डिसाइडिंग. If human is deciding which species of plant is to be grown in agricultural field, that's why agricultural field is called man-made ecosystem. Man-made ecosystem is having more biodiversity or natural ecosystem are having more biodiversity? Natural ecosystem have more biodiversity. लिखना. Natural ecosystem have more biodiversity compared to aquatic, compared to man-made.
natural have more biodiversity compared to man-made ecosystem. यूजुअली इकोटोन जो है ना, इकोटोन, ये रिवर है, ये ओशन है, और ये ओवरलैपिंग जोन है. दिस ओवरलैपिंग जोन इज कॉल्ड एश्यूरी. रिवर और ओशन का जहां पे मिक्स होता है वाटर, दैट प्लेस इज कॉल्ड एश्यूरी. एंड दिस एश्यूरी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इकोटोन. इकोटोन है ये. द स्पीशीज फाउंड इन इकोटोन, species found in ecotone are called edge species. Species found in ecotone, species found in ecotone, edge species है. And usually more number of species are seen in ecotone. ecotone में ज्यादा स्पीशीज दिखते हैं. टाइप ऑफ स्पीशीज आर मोर इन ecotone. ecotone में जो भी स्पीशीज मिलेगा आपको, उसको हम बोलना है एड्ज स्पीशीज बोलना है. नेक्स्ट, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. यहां पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन से हैं इकोसिस्टम के, फंक्शनल कंपोनेंट कौन से हैं इकोसिस्टम के. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार पूछेगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल कंपोनेंट. ऐसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर टू. One is species composition, and second one is stratification. Stratification और species composition को बोल रहे हैं हम structural component बोल रहे हैं. Structural component. If you go to any ecosystem, first you will find species composition and second you will find stratification. What is a species composition? Species composition means enumeration of all species. Enumeration of all species found in a given area. एन्यूमरेशन मतलब काउंटिंग करेंगे. आप काउंट करेंगे ना. आप गार्डन गए, गार्डन देखने के बाद वहां पे ग्रास है, ग्रास के बाद ग्रास हॉपर भी है, वहां पर फिश भी है गार्डन में, बर्ड्स भी हैं, कोकोनट ट्रीज भी हैं. सो काउंटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज. एन्यूमरेशन मतलब काउंटिंग कर रहे हैं आप. यहाँ पे 100 species are present or 200 present or 1000 species present in a given area. That is called enumeration of all species found in a given area. Species composition होता है. Stratification means, what is stratification? Yes, the various species occupying different levels in an ecosystem. The various species occupying different levels. The various species occupying different levels. डिफरेंट लेवल्स में रहना चाहिए स्पीशीज. सारे स्पीशीज एक साइज के नहीं है. इफ यू विजिट फॉरेस्ट, you will find the top layer elephants also, giraffe also, and medium size animals also, cattles, and small size animals also, rabbits, mice. The various species occupying different levels. All species are not occupying same level.
Occupying different levels is called stratification. What is strati? Strati मतलब layer, layer by layer. First layer trees layer, second layer shrubs layer, third layer herbs layer. Best example of stratification is tropical rainforest. If you go to tropical rainforest, you will find three different layers in a forest. फर्स्ट लेयर, टॉप लेयर ट्रीज हैं, उसके बाद श्रब्स हैं, उसके बाद हर्ब्स हैं. सो वेरियस स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स. अलग अलग लेवल्स हैं इनके. ट्रीज श्रब नहीं बन सकते, श्रब्स ट्रीज नहीं बन सकते, हर्ब श्रब नहीं बन सकते, ग्रासेस हमेशा छोटे ही रहेंगे. So this is what stratification. Stratification is very clear in which forest? Tropical rainforest. Why I am not giving example here? Grassland. Grassland में कहाँ पे है stratification? सारे grasses ही हैं. समझ गए? Stratification आपको क्लियर कहाँ दिखेगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दिखेगा. ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है या फंक्शनल कंपोनेंट है? ज्यादा ये सताएगा क्वेश्चन आपको एग्जाम में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल कंपोनेंट? स्ट्रैटिफिकेशन कोई फंक्शनल कंपोनेंट नहीं है. क्या है ये? स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम है. तो फिर फंक्शनल कंपोनेंट क्या होंगे फिर? व्हाट आर द फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में मिलेगा, देखिए फर्स्ट वन यू विल गेट प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी फर्स्ट वन. सेकेंड वन डिकम्पोजिशन. फॉर रनिंग इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम रन करने के लिए क्या चाहिए आपको? प्रोडक्टिविटी चाहिए, डिकम्पोजिशन चाहिए, एनर्जी फ्लो चाहिए, और क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चाहिए. If these four things are available, you can run ecosystem. A garden is possible, an ocean is possible, a river is possible, a forest is possible because of four components. इसमें से अगर एक भी फेल हो गया, ecosystem fails. फॉर एग्जाम्पल इकोसिस्टम में हर चीज है, प्रोडक्टिविटी है, डिकम्पोजिशन है, एनर्जी फ्लो भी हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं है, तो इकोसिस्टम फेल. एक इकोसिस्टम ऑपरेट करेगा बिकॉज ऑफ फोर कंपोनेंट्स, फोर फंक्शनल कंपोनेंट. ये फंक्शनल कंपोनेंट थे, फोर फंक्शनल कंपोनेंट है, टू स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. ओके, now tell me one more thing, whether stratification is a character of population or character of community. Just think and answer. इकोसिस्टम में आपको कम्युनिटी मिलेगा या पॉपुलेशन मिलेगा? कम्युनिटी मिलेगा ना. इकोसिस्टम में सिर्फ एक ही पॉपुलेशन लेते हैं क्या हम? ह्यूमन पॉपुलेशन एक ही लेते हैं. व्हाट इज इकोसिस्टम? Interaction between biotic components, all biotic components. That means stratification is not population character. Population का character नहीं है ये. It's a community character. It's a community character. कम्युनिटी मतलब वहां पे डिफरेंट पॉपुलेशन आने वाले हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन आएंगे. पॉपुलेशन ऑफ बनियान ट्री, पॉपुलेशन ऑफ कोकोनट ट्रीज, पॉपुलेशन ऑफ व्हीट, राइस, मेज प्लांट्स, ग्रासेस,
मेडिसिनल प्लांट। तो ये कम्युनिटी है, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलके। स्ट्रैटिफिकेशन एक पॉपुलेशन का कैरेक्टर नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन कम्युनिटी का कैरेक्टर है। कम्युनिटी मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस। सो यू कैन से 50% ऑफ द चैप्टर क्या है? प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। दिस इज 50%। 50 से ज्यादा ये समझोगे, ये 4 थिंग्स पढ़ लिए तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वन, प्रोडक्टिविटी। सिंपल चैप्टर है, इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी। What is mean by productivity? The rate of formation of biomass. Rate of formation of biomass. जो फूड बन रहा है नेचर में, प्लांट्स फूड बना रहे हैं, और उसका जो रेट है, स्पीड है, हाउ मच फोटोसिंथेसिस गोइंग ऑन, rate of formation of biomass is called productivity. Number 1 point. Second point, productivity is expressed by using the unit. Unit क्या है उसकी प्रोडक्टिविटी की? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब ये है, सपोज यू आर हैविंग सम एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसमें कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है, कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, एक पर मीटर स्क्वायर एरिया में, पर मीटर स्क्वायर एरिया में कितना फूड बन रहा है? 10 kg फूड बन रहा है। 10 kg फूड बन रहा है पर ईयर की बात कर रहा हूं, या पर डे? पर ईयर की बात कर रहा हूं। पर मीटर स्क्वायर एरिया, फॉर एग्जांपल 10 kg ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। अब वो मास में भी लिख सकते हैं, यूनिट कितना फूड बना, 10 kg फूड बना। या ये मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं, 10 kg से कितना एनर्जी आएगा, ऐसा हिसाब लगा के कर सकते हैं। 10 kg इंटू, अगर कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है तो क्या करते हैं हम, इंटू 4 करते हैं ना। क्लियर है? तो ऐसा जो है, मास को हम एनर्जी में भी लिख सकते हैं, मास एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल है। ठीक है, तो ये यूनिट चलती है प्रोडक्टिविटी में। अब प्रोडक्टिविटी में 2 टाइप की प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फॉर्मेशन ऑफ बायोमास, formation of biomass in autotrophs by photosynthesis. Formation of biomass in autotrophs. Formation of biomass in autotrophs by photosynthesis. फोटोसिंथेसिस करने के बाद कितना फूड बना, कितना फूड बना, टोटल कितना फूड बना, that is primary productivity. Formation of biomass in autotrophs by photosynthesis. Who is the mother of nature? Plants. Plants are called mother of nature. Just like mother is preparing food for all, plants are preparing food for all. सो प्लांट्स को हम मदर ऑफ नेचर बोलेंगे, और प्लांट जो है फूड तैयार करेंगे। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो इफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज देयर, फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में 2 टाइप है। इतना सिंपल याद रखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स में है, एनिमल्स में है?
प्लांट्स में, दैट्स ऑल, उतना ही याद रखो। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में फिर दो टाइप है, जीपीपी, एनपीपी। व्हाट इज जीपीपी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड एनपीपी क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा ये? ग्रॉस total rate of formation of biomass in plants, rate of formation of biomass। अच्छा, अब ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स के लिए ही है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोल तो याद आना आपको प्लांट्स ही, ये प्लांट्स के लिए होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन प्लांट्स, इट इज कॉल्ड जीपीपी। प्लांट्स के लिए। एनपीपी भी प्लांट के लिए होगा, प्लांट्स के लिए ही है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज एनपीपी? अमाउंट ऑफ बायोमास लेफ्ट इन प्लांट्स, अमाउंट ऑफ बायोमास लेफ्ट इन प्लांट्स फॉर, किसके लिए? फॉर कंज्यूमर्स, एनिमल्स। कंज्यूमर्स बोलते हो एनिमल्स, कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स हैं, सारे एनिमल आ गए। मतलब मदर ऑफ नेचर प्लांट में फूड बनाएंगे, प्लांट्स फूड बनाएंगे, जो टोटल फूड बनेगा वो जीपीपी होगा, जो टोटल फूड बनेगा वो जीपीपी होगा। और वो जो टोटल प्रिपेयर्ड फूड है उसमें से प्लांट खुद अपना फूड यूज करेंगे, सम फूड दे यूज, और जो बच गया फूड, अमाउंट ऑफ बायोमास लेफ्ट, बच गया है फूड। एक प्लांट है, अब ये प्लांट के अंदर 10 kg फूड बना, प्लांट ने खुद यूज कर लिया 1 kg, यूज बाय द प्लांट, बचा कितना? 9 kg। तो ये 9 kg जो फूड बचा है दैट इज कॉल्ड एनपीपी, the amount of biomass left in plants for consumers। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? एनिमल्स को बोलेंगे। कंज्यूमर्स मतलब एनिमल्स, ठीक है। तो ये होता है एनपीपी, जीपीपी और एनपीपी हो गया। वेदर जीपीपी इज ग्रेटर वैल्यू और एनपीपी इज ग्रेटर वैल्यू? हाँ, जीपीपी हमेशा ग्रेटर वैल्यू होना चाहिए। जीपीपी शुड बी ग्रेटर देन एनपीपी, इतना तो समझ में आ रहा। जीपीपी ज्यादा होना चाहिए। फिर एनपीपी कम क्यों हो गया? एनपीपी क्यों कम हो गया बोल तो, प्लांट्स प्रिपेयर फूड एंड आल्सो यूज फूड। प्लांट 10 kg फूड बनाएंगे तो 1 kg यूज करेंगे प्लांट देमसेल्व्स, इसलिए एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। जीपीपी माइनस आर लिख रहा हूं, माइनस आर। हेलो, हाँ सर, केमिस्ट्री क्लास है, देखिए वहां से। नहीं नहीं, मेरी क्लास 9:30 है, केमिस्ट्री क्लास है, देखिए वहां पर। मैं यहाँ पर हूँ शाहपुर के। जी, सो दैट्स व्हाई एनपीपी कैसा लिखेंगे? एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। व्हाट इज आर? R refers to respiratory loss by plants. Humans are so selfish
प्लांट जो है 10 केजी, कौन बनाए फूड? प्लांट्स बनाए। यूज करे 1 केजी प्लांट्स, उसी को हम लॉस बोल रहे हैं, उसको लॉस बोल रहे हैं। बना कौन दे रहे हैं फूड? प्लांट्स बना रहे हैं, और प्लांट 1 केजी यूज कर रहे हैं, तो मैं उसको बोल रहा हूं लॉस। पूरा 10 केजी का 10 केजी क्यों नहीं मिला हमारे को? रेस्पिरेटरी लॉस बाय प्लांट्स बोल रहा हूं। तो ये था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट्स के लिए होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग हियर। जीपीपी डेफिनेशन वर्सेस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डेफिनेशन, जरा देखो, बहुत क्लोज रहेंगे डेफिनेशन वो। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास की बात आ गई तो जीपीपी बोलना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास तो जीपीपी बोलना है, वरना क्या बोलना है? देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज आल्सो फॉर प्लांट, जीपीपी इज आल्सो फॉर प्लांट। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जीपीपी क्या है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन प्लांट। पीपी क्या है? अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस इन प्लांट। Amount of biomass produced in plant is primary productivity. Rate of formation of biomass is GPP। मतलब उसको जरा अंडरलाइन करो, रेट ऑफ फॉर्मेशन वो केयरफुली देखना कभी भी एग्जाम के लिए, जीपीपी पीपी। देन वन मोर इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कितना है, क्या है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन एनिमल्स कंज्यूमर्स। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बायोमास इन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स बोलो या नहीं तो एनिमल्स बोलो, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। यहां पर एक एग्जांपल लिखेंगे। ए रैबिट इज फीडिंग, रैबिट इज फीडिंग अपॉन रेडिश, upon radish। A rabbit is feeding upon radish. Tell me here, which one is having primary productivity, which one is having secondary productivity? हाँ, रैबिट में क्या आएगा? रैबिट एक एनिमल है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी लिख देता हूं, यस पी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। रेडिश एक प्लांट है, प्लांट में होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब ये है, एनिमल्स आर सिंथेसाइजिंग बायोमास बाय ईटिंग प्लांट। एनिमल्स क्या कर रहे हैं? प्लांट को खा रहे हैं और उससे अपना बायोमास बना रहे हैं, इंक्रीजिंग देयर बॉडी वेट, मास दे आर प्रोड्यूसिंग। तो ये है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज द टोटल बायोमास सिंथेसाइज्ड ऑन अर्थ एनुअली? टोटल प्रोडक्टिविटी कितनी है? टोटल प्रोडक्टिविटी ऑन अर्थ, कितना बायोमास बन रहा है? $170 बिलियन टन्स पर एनम। पर एनम 170 बिलियन टन्स फूड बन रहा है, and everyone is having share, everyone is having share in this 170 billion tons। हर एक का शेयर है, ह्यूमन का शेयर है इसमें, फिशेस का शेयर है, मतलब सब लोग इसमें से लेंगे, सबका हिस्सा है इसमें। एलिफेंट भी इसी में से फूड लेना है, ब्लू व्हेल भी इसी में से लेना, ह्यूमन भी इसी में से लेना, बैक्टीरिया भी इसी में से लेना। everyone has part in this 170 billion tons।
टोटल प्रोडक्टिविटी ऑन अर्थ 170 बिलियन टन्स पर एनम। और एक्वाटिक सिस्टम से कितना है? टोटल प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ओशन, आउट ऑफ विच लिखेंगे, आउट ऑफ विच 55 बिलियन टन्स पर एनम फ्रॉम ओशन। याद रखो 170 में है वो 55, अलग अलग नहीं बता रहा हूं मैं। ओशन से 55 बिलियन टन्स, इवन दो 70% अर्थ covered with water, 70% earth covered with water, 70% earth covered with water, but productivity is low from water bodies. वाटर बॉडीज है ना, ओशन में इतना ज्यादा अर्थ का ऊपर एरिया है, ओशन 70% अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर बॉडीज, ओशन है, तो प्रोडक्टिविटी कम क्यों है इतना? प्रोडक्टिविटी कम क्यों हो रहा है? समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं आपको? अर्थ का जो है, अर्थ का जो देख रहे हैं हम यहां पर, ये 55 बिलियन, ये सॉरी 175 बिलियन टन्स, और ये क्या है बोल तो लैंड एरिया है 30%, और 70% वाटर, और उससे कितना है रिमेनिंग? सॉरी, ये 115 बिलियन टन्स है, ठीक है, 115 बिलियन टन्स है, और यहां पर 55 बिलियन टन्स, 115 प्लस 55 170 बिलियन टन्स हो गया ना। मतलब आप क्या बता रहा हूं, समझ रहे हैं आप? ये देखिए पूरा अर्थ 30% लैंड एरिया से 70% प्रोडक्टिविटी है, और 70% अर्थ का जो वाटर से कवर है उससे सिर्फ 55 बिलियन टन्स। क्वेश्चन पूछा है बुक में, व्हाई सो लेस प्रोडक्टिविटी फ्रॉम वाटर बॉडीज इवन दो दे आर कवरिंग मेजर पार्ट ऑफ अर्थ, मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ 70% कवर्ड विथ वाटर, 70% कवर्ड विथ वाटर, व्हाई लेस प्रोडक्टिविटी? जबकि ऐसा होना था कि ओशन से 70% प्रोडक्ट आना था और अर्थ से 30% ही आना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अर्थ से जो लैंड एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया है, वहां से जो है 30% एरिया से 115 बिलियन टन है, और एक्वाटिक एरिया से 55 बिलियन टन है। समझ गए बात आप? प्रोडक्टिविटी इज लो इन वाटर बॉडीज because light is limiting factor. productivity is low in water bodies because light is limiting फैक्टर। आपको मालूम होना चाहिए लाइट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल द डेप्थ्स ऑफ ओशन। हम पढ़े हैं ना, लाइट इज अवेलेबल इन विच जोन? लिम्नाटिक जोन। लाइट इज अवेलेबल इन लिम्नाटिक जोन, लाइट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोफंडल जोन एंड बेंथिक जोन, डार्क जोन्स होते हैं ओशन के। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में पढ़े हैं ना? हाँ,
कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी जो है ना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आता है। कीमोसिंथेटिक एक्चुअली autotrophs are two types, photoautotroph, chemoautotroph। एक पॉन्ड इकोसिस्टम ले लीजिए, पॉन्ड एक पॉन्ड इकोसिस्टम को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए बोलिए। पॉन्ड मतलब रनिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर, स्टैंडिंग वाटर, ठीक है चलो। तो एक पॉन्ड रन करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? सनलाइट चाहिए। विदाउट सनलाइट कैन यू इमेजिन पॉन्ड इकोसिस्टम? पॉन्ड को सन से क्या रिलेशन है? यहां पर ऊपर जो है वाटर सरफेस पे क्या होते हैं? फाइटो प्लैंकटन होते हैं, फाइटो प्लैंकटन। दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, दे प्रिपेयर फूड। हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ aquatic system? Phytoplankton, they prepare food। उसके बाद यहां पर देखिए कुछ और एनिमल्स आ रहे हैं, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन को खाने के लिए फिर आने वाले हैं फिश, ये फिश आ रही है, यहां पर फिशेस हैं। और यहाँ बॉटम ऑफ द पॉन्ड में कुछ डिकम्पोजर्स हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंगई। आपको मैं क्या बोला था? फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। फॉर रनिंग एनी इकोसिस्टम व्हाट इज देयर नेसेसिटी? प्रोडक्टिविटी इज नेसेसिटी। पहले फूड बनना चाहिए। एंड हु इज प्रिपेयरिंग फूड? फाइटोप्लैंक्टन्स आर प्रिपेयरिंग फूड। सपोज इफ यू रिमूव ऑल द फाइटोप्लैंक्टन्स, वेदर इकोसिस्टम रन? अगर सारे फाइटोप्लैंक्टन निकाल देंगे, जू प्लैंक्टन को फूड नहीं मिलेगा, फिशेस को फूड नहीं मिलेगा, सब स्टारवेशन में जाएंगे, मर जाएंगे। That's why phytoplankton is very much essential. Similarly, zooplankton, everyone is essential here. पहले प्रोडक्टिविटी होना, फिर एनर्जी फ्लो भी होना ना। फाइटोप्लैंक्टन से यहां से लाइट एनर्जी गिरेगी फाइटोप्लैंक्टन पर, फाइटोप्लैंक्टन ट्रांसफर देयर एनर्जी टू zooplankton, zooplankton transfer their energy to fishes। There should be energy flow and there should be decomposition। डिकम्पोजिशन भी चाहिए ना, इधर बैक्टीरिया फंगाई भी चाहिए। यहां पे कुछ फिशेस की डेथ हो जाएगी, दे डाई, एंड आफ्टर देयर डेथ डिकम्पोजिशन ऑकर, मिनरल रिसाइकलिंग ऑकर। डिकम्पोजिशन, डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन क्यों होता है? फॉर मिनरल रिसाइकलिंग। डेड बॉडी में जो भी मिनरल्स हैं उसको रिसाइकल करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनेबल। कुछ चलता है अपनापन, सेल्फ रेगुलेटेड। पॉन्ड का टेम्परेचर कितना चाहिए, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय पॉन्ड इटसेल्फ। सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ रेगुलेटेड इकोसिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। इकोसिस्टम इज ओपन, क्लोज नहीं बोल सकते आप, ओपन बोल सकते हैं। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम का मतलब एनर्जी इनपुट, एनर्जी आउटपुट दोनों भी हो रहा है। इन आउट, एनर्जी इन भी है, एनर्जी आउट भी है। ओपन सिस्टम। इकोसिस्टम क्लोज नहीं हो सकते,
क्लोज नहीं हो सकते, सिर्फ एनर्जी इन हो रहा है, आउट नहीं हो रहा. देयर शुड बी बोथ इन एंड आउट. So what is second necessity of ecosystem? Second component of ecosystem क्या है? Functional component. फूड बन गया, फूड बन गया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गई. अब सेकंड क्या करना चाहिए? डीकम्पोजिशन. जो लोग मर जाएंगे उन लोगों का डीकम्पोजिशन होना चाहिए. Lifetime you are taking calcium, phosphorus, magnesium, iron, zinc from the nature, carbon from the nature. वो सारे चीजें रिटर्न कर देना. ठीक है, हर चीज बराबर रिटर्न कर देना. यू कैनॉट टेक इवन ए सिंगल कार्बन. एक सिंगल कार्बन भी नहीं ले सकते आप. हर चीज वापस कर देना पड़ेगा आपको नेचर को. तो यही डीकम्पोजिशन. व्हाट इज डीकम्पोजिशन? डेड ऑर्गेनिक मैटर converted into simple inorganic carbon dioxide, water, nutrients कन्वर्ट हो जाना चाहिए. सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होना. सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट. मतलब डेड बॉडी कहीं में कन्वर्ट होने वाली है? कार्बन डाइऑक्साइड में. जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड हैं सब ऑक्सीडेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, वाटर बन जाएगा और न्यूट्रिएंट बन जाएंगे, निकल जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स. एंड दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रिक्टली एरोबिक प्रोसेस. एरोबिक प्रोसेस है ये. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा ये प्रोसेस. नाउ व्हाट इज डीकम्पोजिशन? Conversion of dead organic matter with the help of aerobic process into simple inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrients. Aerobically ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा ये प्रोसेस. डेड मैटर, फीकल मैटर is equal to detritus. डेड मैटर प्लस फीकल मैटर. डेड मैटर चाहे प्लांट का हो, डेड मैटर चाहे एनिमल का हो, या फीकल मैटर हो, ये सब किस में आते हैं? डिट्रीटस में काउंट करते हैं इनको. डिट्रीटस. अगर नेचर में फास्फोरस है समझो, तो फास्फोरस प्लांट में जाएगा, फिर वो प्लांट को कोई गोट खा लेगी, फिर वो गोट से एनिमल में आएगा, फिर एनिमल की डेथ हो जाएगी, फिर फास्फोरस वापस आ जाएगा. नथिंग इज वेस्टेड. रिसोर्सेस हमारे पास उतने ही हैं, लिमिटेड हैं, उसी को रिसाइकल करना होता है. लिमिटेड रिसोर्सेस को रिसाइकल करना होता है. So decomposition is very very essential process because decomposition क्या है? Decomposition helps in mineral cycling. Mineral cycling. जो फास्फोरस कभी डायनासोर के बॉडी में हुआ करता था, वो फास्फोरस डिकम्पोजिशन से सॉइल में आया, सॉइल से प्लांट में आया, और वो प्लांट आप खा लिए तो आपको मिल गया फास्फोरस. फिर अपने पास रख लो आप. फिर डेथ के बाद जो है, डिकम्पोजिशन के बाद वापस कर दो. दिस इज डिकम्पोजिशन. मिनरल साइक्लिंग के लिए हर जनरेशन, डू यू थिंक एवरी जनरेशन गेट्स न्यू मिनरल्स? डू यू थिंक एवरी जनरेशन गेट्स न्यू वाटर? वाटर भी रिसाइकल हो रहा है. सेम H2O मॉलिक्यूल हैं,
जो स्टार्टिंग अर्थ में जो H2O मॉलिक्यूल थे, आज जो H2O मॉलिक्यूल है वही है। जस्ट वाटर साइकिल ऑकरिंग, वाटर यहां से एवापोरेट हो रहा है, क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर बारिश हो रही, नीचे आ रहा है, यही चल रहा है काम, रिसाइकल हो रहा है बस। तो डीकम्पोजिशन कितने स्टेप में होने वाला है? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डिट्रीटस and decomposition occur in 5 steps. Number 1, fragmentation. 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 Fragmentation क्या है? Detritus in presence of earthworm break down into smaller and smaller particle. Smaller particles में break हो जाएगा after death. First friend, earthworm. Those earthworm, they come and eat the dead bodies and break down the dead body into smaller particles. तो ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है पार्टिकल्स में, ये प्रोसेस को हम बोल रहे हैं फ्रैगमेंटेशन बोल रहे हैं। फिर सेकंड क्या होगा? लीचिंग होगा। लीचिंग में क्या होगा पता है? जो स्मॉलर पार्टिकल थे, देखो डेड बॉडी के, वो स्मॉलर पार्टिकल से सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स extracted out as mineral salts which go down in earth, जो जमीन के अंदर चले जाएंगे and become unavailable salts, becomes unavailable salts के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए व्हाट इज लीचिंग? स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ डेड बॉडी, फ्रॉम दिस ऑल इनऑर्गेनिक एक्सट्रैक्टेड आउट, जो इतना भी इनऑर्गेनिक मैटर है वो सारा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा एज मिनरल साल्ट्स विच गो डाउन इन अर्थ, वो बहुत नीचे चले जाएंगे जमीन के, एंड बिकम्स अनअवेलेबल साल्ट्स। मैग्नीशियम निकलेगा बॉडी से तो मैग्नीशियम के फॉर्म में नहीं निकलेगा, डेड बॉडी से मैग्नीशियम निकलेगा तो सॉल्ट के फॉर्म में निकलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ऐसा सॉल्ट के फॉर्म में निकलेंगे बॉडी से जितना भी इनऑर्गेनिक मैटर है। पहले एक डेड बॉडी था, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, फिर ये पार्टिकल में से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट हो गए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्टेड आउट। दिस इज कॉल्ड लीचिंग। लीचिंग का डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, द प्रोसेस ड्यूरिंग विच inorganic nutrients from the dead body are extracted out and they become as unavailable salts. क्या बोलेंगे? लीचिंग बोलेंगे। लीचिंग के बाद कौन क्या होने वाला है? कैटाबॉलिज्म। अब डेड बॉडी कौन से फॉर्म में है? कौन से फॉर्म में है? क्या डेड बॉडी को कोई शेप है उधर? अब डेड बॉडी में सिर्फ क्या बच गए? मतलब कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड के फॉर्म में है डेड बॉडी, जो बॉडी में ग्लाइकोजन है, फैट है, प्रोटीन है, ऐसा बचे हुआ है, कुछ भी नहीं है उधर।
So what is catabolism? Breakdown of large organic compounds into simple inorganic breakdown of large organic compounds into simple inorganic substances by bacterial and fungal enzymes. फंगस और बैक्टीरिया के अपना काम करेंगे और जितना भी लार्ज कंपाउंड है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, एलिमेंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कंपाउंड को। पहले डेड बॉडी था, पार्टिकल्स बने, पार्टिकल्स से एक्सट्रैक्शन हुआ, कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड बच गए थे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया। एनी हाउ डीकंपोजिशन का स्टार्टिंग क्या लिखे हम मीनिंग? डेड बॉडी कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक। सारा का सारा ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होना चाहिए। अभी डेड बॉडी में कुछ भी नहीं बचा है, बिल्कुल सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाने वाले हैं। द डेड बॉडी डिसअपियर्ड and all the nutrient extracted out and all those nutrient go into soil. अब फोर्थ स्टेप होने वाला है। What is the fourth step? Humification बोले। फ्रैगमेंटेशन सीक्वेंस जरूर पूछते हैं। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन। What is humification? Formation of nutrient rich soil. ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन में होगा न्यूट्रिएंट रिच सॉइल का फॉर्मेशन। न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, डार्क ब्राउन कलर, अमरफस, एकदम फाइन पाउडर की तरह अमरफस है, न्यूट्रिएंट रिच है, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। अब बच्चे ज्यादा यहां पे ये पूछते हैं रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन क्या है? ये रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन मींस एवरीथिंग इज सिंप्लीफाइड। लार्ज कंपाउंड से हर चीज सिंपल में कन्वर्ट हो चुकी है, तो और क्या ब्रेक करेंगे? डेड बॉडी से पूरे मॉलिक्यूल बन गए, एलिमेंट्स बन गए, क्या एलिमेंट को ब्रेक करेंगे फर्दर? इसलिए बोल रहे हैं अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए बोल रहे रेजिस्टेंट है, अब कुछ भी माइक्रोब नहीं कर सकते, काम हो गया, काम पूरा। रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन बोल रहे हैं। डार्क ब्राउन कलर आ चुका है सॉइल में। अगर सॉइल में डार्क ब्राउन कलर है तो समझना नीचे बहुत ज्यादा डिकम्पोजिशन हो गया है और पूरा न्यूट्रिएंट सॉइल में आ चुके हैं। आफ्टर ह्यूमिफिकेशन द लास्ट स्टेप, मिनरलाइजेशन। फर्दर एक्सट्रैक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। Further extraction of inorganic nutrients from soil। इस बार soil से further extraction of inorganic nutrient from soil। सॉइल से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, पूरे सॉइल में चले गए थे ना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, अब वो सॉइल में से निकाल के प्लांट में जाना है ना।
डेड बॉडी में से सॉइल में आए इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, अब वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट सॉइल में से कहाँ जाना चाहिए, प्लांट में जाना चाहिए, मिनरलाइजेशन। दैट मीन्स आउट ऑफ 5 स्टेप्स, डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप में से स्टार्टिंग 3 स्टेप, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, these 3 steps occur in dead body, detritus. Fragmentation, leaching, catabolism occur in detritus, and remaining 2 steps, humidification, mineralization occur in soil, soil में हो जाएगा। अब डिकम्पोजिशन फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है। डिकम्पोजिशन फास्ट कहां होगा, फास्ट कहां होगा, स्लो कहां होगा, इनहिबिट कहां होगा, समझ रहे, फास्ट कहां होगा, स्लो कहां होगा, इनहिबिट कहां होगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है, डेड बॉडी जो है 10 इयर्स के बाद भी वैसे ही है फ्रेश, 20 इयर्स के बाद भी वैसे ही है फ्रेश, 1000 इयर्स के भी डेड बॉडीज फ्रेश हैं अभी भी, ऐसा भी मिला है केसेस। तो डिकम्पोजिशन कहीं पे स्लो होता है, कहीं पे फास्ट होता है, और कहीं पे होता ही नहीं, इनहिबिट हो जाता है। पहले इनहिबिट की बात करेंगे, डिकम्पोजिशन होता ही नहीं, कहां पर, लो टेम्परेचर अगर है और एनारोबिक कंडीशन है। इफ यू स्टोर डेड बॉडी एट लो टेम्परेचर, एनएरोबिक कंडीशन, लो टेम्परेचर एनएरोबिक कंडीशन में रखेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए। स्लो कब हो जाएगा, if detritus is rich in water insoluble compound, water insoluble compounds, water insoluble compounds like lignin, काइटिन, लिग्निन और काइटिन जैसे कंपाउंड अगर रहेंगे तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। लिग्निन, काइटिन, वो क्यों, लिग्निन, काइटिन वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता। अगर डेड बॉडी में बहुत ज्यादा लिग्निन है, काइटिन है, तो डिकम्पोजिशन बहुत स्लो। फास्ट कब होगा, वार्म कंडीशन, वार्म होना चाहिए, मॉइस्ट कंडीशन होना चाहिए, एरोबिक कंडीशन होना चाहिए, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होना चाहिए। वाटर soluble compounds like nitrogen and sugar, नाइट्रोजन और शुगर जैसे कंपाउंड्स रहना चाहिए, नाइट्रोजन एंड शुगर कंपाउंड्स। अगर ऐसे कंपाउंड रहेंगे तो डिकम्पोजिशन फास्ट, लिग्निन और काइटिन रहा तो स्लो, एनारोबिक कंडीशन रहता तो डिकम्पोजिशन बंद, ऑक्सीजन नहीं रहा तो बंद ही हो जाएगा डिकम्पोजिशन। ठीक है, यहां तक आप रिवाइज कर लेके आइए, कल टुमारो विल कंटिन्यू।